morning everyone. I hope that everyone are fine and good. So we are going to I'm going to explain you chapter 6 pronoun as I explained you in a online class also. So I'm again repeating those who are not attending the class for them. And if you want to see this video, you can see. Okay, a pronoun is a word that is used in place of noun. A pronoun क्या करता है, noun की जगह लेता है. One or more nouns are pronouns. Okay, example, Maria is in the park, she is playing. So we need not to take the Maria name again. So instead of that we are going to use she, he, it. Okay, there, like that. Now fill in the blanks with the suitable pronouns. यहाँ पे आपको फिलअप करने हैं suitable pronoun के साथ. Okay, what is a personal pronoun? Pronouns that in stand in place of person or a thing. Personal pronoun मतलब जो भी place के लिए या person के लिए, thing के लिए stand करता है, that is called a personal pronoun. तो इसमें first person pronoun refers to self, means I, me and my. Second, we, us, ours, and second person में क्या हो जाएगा, you हो जाएगा, yours. थर्ड पर्सन में he, him, his, she, her, hers, it, their, them, their, like that. The person who is the speaking is the first person. The person spoke is the second person. The person spoke about is the third person. Okay, the pronoun and its noun. अभी यहाँ पे देख सकते हो आपके एग्जाम्पल. इफ द नाउन इज अ प्यूरल, द pronoun referring it must be प्यूरल टू. जैसे कि हम pronoun नाउन होता है वो प्यूरल होता है, तो एंड pronoun also should be plural. अगर if it is a singular then pronoun should be also singular. Now read the B1. Read this conversation between Jack and his mother about how he got the magic beans. Tick the correct option. You have to tick the correct option in this. Okay, possessive pronoun is जो चीज़ किसी की belong करना है. Pronouns that shows possession मतलब किसी चीज़ किसी को belong करना. Okay, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में माइन, दिस फ्लावर्स इज माइन, एंड प्लूरल में क्या हो जाएगा, दिस चॉकलेट्स इज आवर्स. सेकेंड पर्सन में योर्स, इज दिस योर कॉइन, एंड प्लूरल में क्या हो जाएगा, दिस कॉइन्स बुक्स आर योर्स. थर्ड पर्सन में हिज एंड हर, दिस रैबिट आर हर्स. देयर में ऑल दिस ग्रास इज फॉर द रैबिट, इट इज देयर. ओके, C1. Mr. Fix is a security officer. He works at the Space Museum. He collects the lots item and return them to the children. Now he is asking the children which item belongs to whom. Fill in the blanks to complete the sentence with possessive pronoun. Okay, आपको यहाँ पे possessive pronoun का you have to fill in this blank. Okay, what is a demonstrative pronoun? A demonstrative pronoun is used to point out a specific person. वो specific person या place, thing and idea, जैसे कि these, that, these and those use करके आपको ये fill up करना है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी explain किया, you have learned in a previous class also what is a this, that and those, right? You have to use that and you have to write the D1. Okay, so look, D1 is look around you. Write 4 sentences to talk about the things or people near you and away from you. Remember to talk about the both singular and plural. Singular और plural में दोनों आपको लिखना है. ठीक है, interrogative pronouns means presenting a question, question पूछना. It is used to refer an unknown noun. जैसे who is used for person, who is an old man. What is used to refer the things or idea. Okay, जैसे कि what did he give Jack. Which is used to refer both person and thing. Which दोनों के लिए होता है, person के लिए and thing के लिए. It is used to make a selection, मतलब selection आपको option देता है, whether you like vanilla ice cream, whether you like strawberry, like that. It gives you option. Which is the way to giant house, like that. Whose is used to ask whose does something belong to, मतलब ये चीज़ किसकी belong करने के लिए, पूछने के लिए whose use करते हैं हम लोग. Okay, so E1 is Joy has won the inter-school drawing and painting competition. Napur is inviting Joy for the school newspaper. He can hear Joy's answer very well, but we can't hear all the words in Napur's question. Fill in the blanks in Napur's question. Remember to use interrogative question. आपको who, what use करके fill up करने. ठीक है, and F1 also fill in the blanks with appropriate pronoun to complete the story below. यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिए वो यूज़ करके आपको fill up करने. ठीक है, what is an adjective? An adjective is a word that provides more information about the noun. Adjective क्या करता है, noun के बारे में हमें ज़्यादा information देता है. जैसे कि what kind, वो कैसे है, how many, कितनी क्वांटिटी में, नंबर में, या what color, कौन से कलर में है. ओके, एग्जाम्पल एप्पल है, वो नाउन है, तो वो कैसा है, रेड,
या फिर ग्रीन, लाइक दैट। अभी रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल द एडजेक्टिव, यहाँ पे आपको सर्कल करना है एडजेक्टिव को, ठीक है। पोजीशन ऑफ एन एडजेक्टिव, अभी पोजीशन क्या होती है एडजेक्टिव वो देखना है। एडजेक्टिव यूजुअली कम्स बिफोर नाउन, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के आगे होता है। फॉर एग्जांपल अ स्मॉल प्लैनेट, प्लैनेट इज अ नाउन, अ स्मॉल इज एडजेक्टिव, ओके। एडजेक्टिव ऑल्सो गो आफ्टर द वर्ब, लाइक वर्ब के बाद भी जाता है, जैसे कि इज, बी, आर, हैज, हैव, गेट, बिकम, look, seem, appear, sound, taste, smell, feel, air. Example, Pluto is a small, like that. So B1 is put the words in this jumbled sentence in the correct order and rewrite this sentence in your notebook, okay। पर हम लोग इसी में लिखेंगे, हम लोगों को नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं, वी आर गोइंग टू मेक हियर ओनली, ओके। यहाँ पे सेंटेंस जम्बल है, यू हैव टू मेक द सेंटेंस प्रॉपरली, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टोरीज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको ये जो बॉक्स दिया है उसमें से देख के आपको ये फिलअप करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मतलब एक दूसरे के साथ कंपेयर करना। यहाँ पे जैसे कि अर्थ इज द बिगेस्ट प्लैनेट, देन मून एंड मर्क्यूरी, राइट। सो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो प्लैनेट के बीच में, ओके। तो जैसे कि आपके भी घर में आपके भाई बहन हो तो उसके साथ आपका कंपैरिजन होता है कि ये बड़े भैया देखो आपके कितने अच्छे हैं, लाइक दैट। Adjective tells about the quantity of something or somebody. We can use adjective of quality to compare the quality of noun by adding er and est. जब हम comparison करते तो comparative में हम er लगाते और superlative में est, ठीक है। जैसे कि आप ये पेज नंबर पे देखते हो, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, ग्रेट, ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट, न्यू, न्यूअर एंड न्यूएस्ट, लाइक दैट। एडजेक्टिव एंडिंग इन er, ler, or ow, जैसे कि er से एंड होता है तो est लगाना पड़ रहा है हमें, ठीक है। सिंपलर, सिंपलेस्ट, लाइक दैट। वी यूज़ मोर एंड मोर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, मोर इज यूज्ड इन कंपैरेटिव एंड मोस्ट इज यूज्ड इन सुपरलेटिव, ओके। एंड देन अ फ्यू एडजेक्टिव चेंज completely when turn into comparative and superlative। थोड़े एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो completely चेंज हो जाते हैं, सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव में एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव में जैसे गुड, तो कंपैरेटिव में बेटर एंड सुपरलेटिव में बेस्ट, लाइक दैट। बहुत सारे वैसे वर्ड्स हैं जो चेंज होते रहते हैं। द स्पेलिंग्स ऑफ दिस फ्यू एडजेक्टिव चेंज एंड व्हेन वी यूज देम इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव है जिसमें कंपैरेटिव में भी स्पेलिंग चेंज होते हैं एंड सुपरलेटिव में चेंज होते हैं, ओके। एंड हम लोग देन कब यूज़ करते हैं, देन हम कंपैरेटिव के बाद में यूज़ करते हैं। द कब यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव के आगे, ठीक है। नाउ ए, द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे चूज़ करना है सही फिलअप को, ठीक है। B1 टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे जो आपको टिक सही ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। C1 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फॉर्म करेक्ट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया, उसमें आंसर दिया, यू हैव टू चूज एनी वन विच इज सूटेबल देयर, ओके। D1 fill in the blanks in the story with the correct form of a words given in the bracket. The first one has been done for you. यहाँ पे भी सेम, you have to use proper form, ओके। इसका आप करेक्ट फॉर्म लिखना है, ब्रैकेट में दिया है उसका, ठीक है। You have to fill in this and moving to the chapter 9, that is an article. You all learned from UKG also what is an article, राइट। ए एंड द, जैसे कि आप वॉवल्स लर्न करते थे, वॉवल्स जो होते ए ई आई वो, उसके आगे हमेशा हम एंड यूज़ करते। जो भी शब्द ए ई आई वो से स्टार्ट होता है उसके आगे हम एंड लगाते हैं। जो भी वर्ड्स बाकी की ABCD BCD वगैरह से स्टार्ट होता है उसके आगे हम ए लगाते हैं। और द कब लगाते हैं, वे विल द इज kept before any place or famous monument like that, okay। और जब नाउन को एक बार हमने नाउन का प्रेजेंटेशन कर दिया और दूसरी बार उसकी जगह पे, नाउन की जगह पे हम द यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी A1 कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्जेशन यूजिंग सूटेबल आर्टिकल्स, यहाँ पे कन्वर्जेशन कंप्लीट करना है ए और एंड से। B1 ऑल्सो सेम लाइक दैट ओनली। और द कब यूज़ किया जाता है, द इज यूज टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और आइडिया। वी यूज विथ अ पर्टिकुलर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, दोनों में यूज़ करते हैं हम। टू रिफर टू समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन, जो ऑलरेडी मेंशन हो ही जाता है, जैसे कि अ गर्ल रीड अबाउट अ साइंटिस्ट वर्क, जैसे कि अ गर्ल और साइंटिस्ट के बारे में एक बार हमने बात कर ली तो उसकी जगह पे हम द यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम हम जब उसके बारे में बात कर रहे हो तो हम द यूज़ करेंगे, ठीक है।
जैसे कि नाउ C1 फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल, यहाँ पे भी आर्टिकल यूज़ करके आपको फिलअप करना है. नेक्स्ट इज अ टेस्ट पेपर दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन सेल्फ. ओके, नेक्स्ट इज चैप्टर 10 दैट इज अ वर्ब. वर्ब मीन्स shows an action, right? Verb are words that tells us what a person or a thing does. वो क्या करता है वो उसके बारे में हमें बताता है. Action, okay. Be are state, जैसे कि here are the some example of be are state verb. Is, are, am, was, were, will be, ये सारा state of verb में आता है. Now A1, look at the following sentence. What do you understand? Underline verb, describe, write PA for physical action. मतलब जो आप physical action दिखाते हो उसको PA लिखना है. State action मतलब is, are, have वगैरह. Belong मतलब किसी चीज़ किसी को belong करना, उसके लिए be लिखना है. ठीक है, so fill in this blank. Verb and helping verb. Verbs can be divided into main verb एंड हेल्पिंग वर्ब. वर्ब दो टाइप में डिवाइड होता है, मेन वर्ब में एंड हेल्पिंग वर्ब में. डूइंग वर्ब आर नोन एज मेन वर्ब. जो डूइंग वर्ब होते हैं उसको मेन वर्ब बोला जाता है. बी वर्ब एंड बिलोंगिंग वर्ब आर सम टाइम नोन एज हेल्पिंग वर्ब. बी वर्ब एंड बिलोंगिंग वर्ब वो दोनों किस में आते हैं? हेल्पिंग वर्ब में आते हैं. हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब की हेल्प करता है. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, द स्पेसशिप इज मूविंग फास्ट. मेन वर्ब इज मूविंग, हेल्पिंग वर्ब इज. अंडरस्टूड? व्हेन टॉकिंग ऑफ थिंग्स दैट हैपन यूजुअली आर रेगुलरली, जब जो भी थिंग्स हमारे साथ रेगुलरली होती है उसके साथ आई एम, वी आर, यू आर, लाइक दैट. Look at B1. Look at the words in the table below. Choose a word from each column to make as many sentences as you can. You may use the word from the middle column as often as you like. Okay. So you have to match this one. And C1 is tick the correct form of an B and have to complete the following sentence. Okay. C1 is like that. And D1 is also tick the correct form of a B to complete the following sentence. And E1 is underline the verbs. Okay, यहाँ पे verbs underline करना है आपको. Okay, so our chapter 1 to 6 1 to 10 I explained in this video. I hope that you understood it. Okay, thank you.